morning, students. Myself Deepali Harchande. I welcome you all for my channel Education is Strength. Already we have started lesson number 6, that is India and the World. Already I have uploaded first part of this lesson on YouTube. Just go thoroughly with this lesson. Today we'll see the second part of the same lesson. See, in the first part what we have learned about the pre-independence and post-independence Indian policy, Indian foreign policy. That we have learned what was the Indian foreign policy, pre-independence and at the time of pre-independence and post-independence. Afterward, we have learned about objectives of Indian foreign policy. Means what were the objectives or what are the aims? What are the fundamental aims, basic aims and objectives of Indian foreign policy? Very first is sovereignty, that we have learned thoroughly in the first in the first part. Afterward, we have learned about principles of Indian foreign policy. Principles of Indian foreign policy, in that on what basis the foreign policy is laid. On what basis, मतलब कौन से बेस पर हम ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो अप्लाई करते हैं. वेरी फर्स्ट इज सॉवर्निटी, सेकेंड इज इक्वालिटी, थर्ड इज रिस्पेक्ट टू सॉवर्निटी, देन नॉन इंटरवेंशंस in the international affairs, and afterward the respect for international law that we have learned, active participation in international and regional organizations. तो ये सारे जो है ये फंडामेंटल और बेसिक हम बोल सकते प्रिंसिपल्स है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है फॉरेन पॉलिसी अगर हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं और अप्लाई करते हैं. Afterward, we have seen about the Pandit Nehru speech. Now, in this lecture, we are going to start with the next part of this lesson. We'll start with non-alignment. We are going to start with the page number 60. That is non-alignment. Non-alignment को मराठी में बोलते हैं अलिप्ततावाद. मतलब अलिप्त रहना है, हमें किसी भी देश का समर्थन नहीं करना है, ना कि हमें अमेरिका का समर्थन करना है, ना कि हमें सोवियत यूनियन का समर्थन करना है और चाइना का समर्थन करना है. किसी के भी साइड में हमें खड़ा नहीं रहना है. इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन अलाइनमेंट, अलिप्ततावाद. सी यू कैन सी हियर वन मीटिंग वाज हेल्ड एट बेलग्रेड on 1961, first non-aligned summit meeting. So this is the picture of meeting where this meeting had held at the time of 1961. Now let's see what is actually in non-alignment. Okay, अभी क्या है इसमें? Non-alignment has been an important aspect of India's foreign policy. Non-alignment literally means not to be part of any military alliance. Fine. जैसे मैंने कहा है कि किसी के भी समर्थन में नहीं खड़ा होना है, वैसे ही समर्थन मतलब क्या? जो कुछ मिलिट्री है उसमें अलायंस नहीं करना है. मतलब अभी आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, तो उसमें सारे देशों ने अलाइनमेंट किए थे. मतलब उन्होंने हम उसको एक शब्द बोल सकते, एक के साथ आना, मतलब एक दूसरे का साथ देना, समर्थन करना. तो मिलिट्री अलायंस नहीं करना है. मतलब अमेरिका को किन देशों ने सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन को किस देशों ने समर्थन किया, सपोर्ट किया, ये किस में आता है? मिलिट्री अलायंस में आता है. और भी हम कह सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस नहीं करना है. मतलब क्या? जो लश्करी करार होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है. इसको क्या कहते हैं हम? नॉन अलाइनमेंट लिटरली मीन्स नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस. किसी भी मिलिट्री के साथ, किसी भी देश के मिलिट्री के साथ हमें करार नहीं करना है, लश्करी करार. उसको हम कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट. इट वॉज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स of the two superpowers.
मतलब जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दो सुपर पावर थे, हमने देखा है, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो उस टाइम इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या था? इंडिया की साइड क्या थी कि किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है, किसी के भी मिलिट्री के साथ अलायंस नहीं करना है। ओके, तो ये हमने एक पॉलिसी अपनाई थी। ये पॉलिसी हमने कब अपनाई थी? जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो सुपर पावर किसी के भी साथ हम नहीं गए थे। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन अटेम्प्टेड टू extend their respective spheres of influence. See, they wanted to extend their sphere. Sphere means they wanted to dominate other countries. Means Soviet Union, they were attempting, they were taking efforts to extend their influence. Same year, the America also want to extend their influence. मतलब क्या है? खुद के ऐसे प्रभाव क्षेत्र निर्माण करने हैं। किसने किया ये प्रयत्न? सोवियत यूनियन ने भी किया और अमेरिका ने भी किया। उसके बाद हमने देखा है अमेरिका एक अकेली सुपर पावर रह गई, सोवियत यूनियन सेपरेट हो गया, उसका विघटन हो गया। तो उसके बाद में सुपर पावर कौन बना? अमेरिका। अभी पूरा वर्ल्ड कहाँ पे मुड़ रहा है? मल्टीपोलैरिटी की तरफ। मल्टीपोलैरिटी भी हमने देखा है। मतलब क्या? अमेरिका, इंडिया, चाइना, रशिया, they all are emerging, they all are arising as a super power. Fine. So हमारा उसमें रोल का क्या था कि किसी के साथ भी अलायंस नहीं करना है। अभी ये दो देश थे, उन्होंने क्या चालू किया? प्रभाव क्षेत्र निर्माण करना शुरू किया। फाइन। थ्रू प्रमोटिंग मिलिट्री अलायंस इन यूरोप, एशिया एंड एल्सवेयर इन द इंडिया। मतलब मिलिट्री अलायंस कर करके उन्होंने क्या किया? खुद की जो क्या कह सकते हैं हम, खुद का जो पावर है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे देखो, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिलिट्री अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अभी कोल्ड वॉर में कौन कौन से अलायंसेस थे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1949, ये नाटो का एक अलायंस था। एंजिस का एक अलायंस था। बाद में सीएटाओ ये एक अलायंस था। एंड सेंटो, ये अलग अलग अलायंस दिए हैं। और उसमें कौन कौन से देश इंक्लूड थे, कौन कौन सा मिलिट्री अलायंस था, ये उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ये देखो, सोवियत मिलिट्री अलायंस और के कौन कौन से ईयर में भी हुए, ये सब इन्होंने दिया है। नाउ नेक्स्ट, अभी इसमें क्या दिया है? सारे देशों ने आइदर अमेरिका की तरफ और सोवियत यूनियन की तरफ उन्होंने क्या किया? अलायंस किया। लेकिन सिर्फ इंडिया ऐसा देश था जिन्होंने नॉन अलाइन करने का फैसला लिया और इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया। कहाँ से? बोथ द सुपर पावर्स, मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों भी जो कंट्रीज़ है उसमें इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका ये आइडिया था कि किसी भी देश से अलायंस नहीं करना है, किसी भी सुपर पावर से अलायंस नहीं करना है। तो ये देखकर बाकी के जो भी कुछ कंट्रीज़ थे उन्होंने भी यही इट्स नॉट अ सिस्टम बट यही उन्होंने फैसला लिया, डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, हम नॉन अलाइन के तरफ मुड़ जाएंगे। मतलब ना कि अमेरिका के तरफ, ना कि सोवियत यूनियन की तरफ। तो ये बड़ा डिसीजन लिया गया पंडित नेहरू जी के साथ बाकी के देशों ने। ओके, और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया, मैंने बताया। मतलब दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस भी दिया और दोनों को उतना ही रिलेशन मेंटेन भी किया। इसलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो अमेरिका हम इंडिया से खफा था। मीन्स दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इंडियाज डिसीजंस अगेंस्ट दिस अलाइनमेंट। मतलब उनको ऐसा लग रहा था अमेरिका को कि अभी ये जो इंडिया है वो हमारे साथ अलायंस करेगा और हमारी पावर बढ़ाएगा। लेकिन इंडिया ने ऐसा फैसला लिया, इसलिए अमेरिका और इंडिया में जो रिलेशंस थे प्री इंडिपेंडेंस में, तो वो क्या हुए, थोड़े से क्या कह सकते हैं हम, जो ये रिलेशंस थे वो थोड़े से कमज़ोर होने लगे और अमेरिका उसमें
खुश नहीं थे. अमेरिका वॉज नॉट रेडी और दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन विच हैज़ बिन टेकन बाय इंडिया. अभी ये देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी. अभी ये हमने हिस्ट्री देखा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करते, प्रभाव डालते. तो वेरी फर्स्ट इज जोग्राफी. लेट्स सी the points first. Very first is geography. Our geographical boundaries, our geographical location matters a lot in foreign policy. Fine. Second thing is history. History and geography both are very much important. After that, economy of our country, it also influence, it also matters a lot. Then polity, international system. Next is, yes, these points means still polity and international system. ये जो points है ये हमारा जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है. अभी हमारा अगर जोग्राफिकल एरिया देखेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, तो सारे जो नेबरिंग कंट्री है उसमें हम हमारी बॉर्डर शेयर करते. फाइन. मतलब अगर आप पाकिस्तान और चाइना का जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान की बाउंड्री और इंडिया की बाउंड्री, ये तीनों जो बाउंड्रीज़ है उसमें इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ. फाइन. ये देखिए चाइना की और पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर नहीं की, उन दोनों को बाउंड्री शेयर नहीं है. उन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे भारत से ही बनता है. तो अगर हम हमारे भारत के लोकेशन की बात करेंगे, अगर इंडिया के जोग्राफिकल प्लेस और लोकेशन की बात करेंगे तो हमें 8 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है जो सिर्फ एशिया में सिर्फ इंडिया ही शेयर करता है. तो हमारे पास हमारी जो बाउंड्री शेयर है वो कौन कौन से देशों के साथ है, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान. ये जो 8 कंट्रीज़ है ये हम इसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भी कह सकते हैं. तो 8 देशों से हमारी बाउंड्री शेयर होती है. तो ये जोग्राफिकल में और हम अगर देख सकते हैं जोग्राफ़ी में ये बहुत बड़ी बात है. इसलिए जो इंडिया का जो लोकेशन है ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि हमें सारे जो 8 देश है उन सब से हमें क्या करना है, इन सब से हमें अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है. फाइन. तो ये एक फॉरेन पॉलिसी पे प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है. ये ज्योग्राफी है. अभी हम हिस्ट्री तो हमें सबको पता है, फिर भी जस्ट टेक अ लुक ऑन द हिस्ट्री. सी दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल कल्चरल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़. हमारा जो इंडिया की वैल्यू है, कल्चर है, वो सारे देशों में हम कह सकते हैं सारे पूरे वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण है, एक इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर को. सच एज पीस एंड को एग्जिस्टेंस. अभी हमने देखा है व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ, दैट नॉन अलाइनमेंट. इंडिया हैड अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट and the other countries they also wanted to adopt the non-alignment. Means what? India, since pre-independence, India want peace and stability. Fine. So ये एक value है peace and stability की, coexistence की. It also includes the influence of historical culture, ties with the neighboring civilizations in West, Central and Southeast Asia on India's foreign policy. सो हमने हमारे कल्चर का जो प्रभाव है वो बाकी के देशों में भी हमने बाकी के देशों को हमने प्रभावित किया है. सम ऑफ द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी लाइक एंटी कॉलोनियलिज्म, देन एंटी रेशियलिज्म वर लेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. यस, आपको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे 150 साल हमारे देश पे उन्होंने राज किया है. पोर्तुगीज़ भी आए, देन डच पीपल आए, फ्रेंच पीपल आए, लेकिन सबसे ज़्यादा राज हमारे देश पे किसने किया है, रूल किसने किया है, ब्रिटिशर्स ने. सो ये कॉलोनी जो जिसने ये वो मतलब जो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने,
इसके खिलाफ हम लोग थे. तो वी वर अगेंस्ट द colonialism, so we were following, or we were giving more importance to the anti-colonialism. Then anti-racialism also means sarva dharma samabhav. Not a single religion will get importance, but all the religions will get equal importance in front of the law, in front of the constitution. So these two, we can say, basic ideas, basic ideologies were adopted by India, and that is the history, and it is very important for the foreign policy. Next is India's economy. It is also an important part. Let's see what is there in that. See what is there in economy. After post independence, the India was a strong urge of come out of poverty and backwardness. Means we wanted to overcome the situation of poverty and backwardness, and for that purpose the India started changing, started revolving the systems, and we had adopted a constitutional system, democratic system. We had a structure of democracy, we had a structure of constitution. So these all are lead towards the progress. Means these all system, this we can say, ये जो सब इंडिया ने इम्प्लीमेंट करना चालू किया वो किसके तरफ मुड़ रहा था? डेवलपमेंट के तरफ, प्रोग्रेस के तरफ मुड़ रहा था. उसमें इंडिया ने रिफ्यूज़ क्या किया? जो इंटरनेशनल लेवल के जो डोनर कंट्रीज़ थे, मतलब जो हमने पिछले बार भी देखा है, लास्ट एक हमने कॉन्फ्रेंस देखा था जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंसेस दैट गेव फाइनल शेप टू द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. और एक हमने कॉन्फ्रेंस देखा था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये किसके लिए इस्टेब्लिश किया था? टू मॉनिटर फंड, फाइन, एंड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये एक सारे देशों ने एक साथ आके उन्होंने एक फंड रेज किया, लेकिन इंडिया ने ये कुछ जो फंड था, जो डोनर कंट्रीज़ थे, उनके पास से हेल्प लेने के लिए मना किया. तो इंडिया को क्या चाहिए था? खुद का विकास, खुद का प्रोग्रेस हम हमारे कंट्री में ही करेंगे. ये एक पॉलिसी इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था. तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जो डोनर कंट्रीज़ थे उनके पास से जो डोनेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया. तो इसके बजाय हमारे देश ने क्या किया? लिबरलिज्म, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ वो वर्ड. हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का हमने एक नया इम्प्लीमेंटेशन चालू किया. लिबरलाइजेशन तो हमें पता है, उदारमतवादी, मतलब जो कुछ हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें हमने क्या किया? लिबरलाइजेशन, फ्रीडम दिया. बाकी के देशों को भी फ्रीडम दिया. हमारे कंट्री में जो मर्चेंट्स थे, हमारे कंट्री में जो बिजनेसमैन थे, उनको क्या किया? हमने एक फ्रीडम दिया कि आप आपके हिसाब से ये जो बिज़नेस है, वो इंडस्ट्रीज़ है, वो आप क्या कर सकते हो? एस्टैब्लिश कर सकते हो और रन कर सकते हो. तो ये जो 3 सेक्टर्स है, ये जो 3 हम कह सकते हैं सिस्टम्स है, ये जब से इंडिया ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तब से हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है. तो इसके ये तो एक पॉलिसीज़ है. वन मोर पॉलिसी इंडिया हैड स्टार्टेड अडॉप्टिंग दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. हमने पब्लिक सेक्टर को क्या किया? फ्रीडम दिया. उसमें भी हमने लिबरलाइजेशन का इस्तेमाल किया. देन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर्स. तो ये एक एक पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और हमारी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन क्या होने लगी? बढ़ने लगी. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉलिटी. सी, अब ये पॉलिटी में हम क्या देखने वाले? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास 3 ऑर्गन्स है.
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. फाइन. सो अभी एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू एग्जीक्यूट द लॉज. जो कुछ लेजिस्लेचर ने नए लॉज बनाए, जो कुछ लेजिस्लेचर ने हमें बताया कि हमारे फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से जो एग्जीक्यूट करना है तो वो कौन करेगा? एग्जीक्यूट कमेटी करेगी. अभी एग्जीक्यूट कमेटी भी ये क्या है? ये गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है. तो उन्होंने अभी क्या किया? उन्होंने ये जो कुछ एग्जीक्यूशन करना है उसके बारे में सोचना चालू किया और एक सिस्टम बनाई. अब इस सिस्टम में क्या है? गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. किसके बारे में? गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उन्होंने किस में अच्छा काम करना चालू किया? टू इम्प्लीमेंट द फॉरेन पॉलिसी. ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया. सो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेक और टू इम्प्लीमेंट द फॉरेन पॉलिसीज. फाइन. अभी ये किसने किया? जो हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे. फाइन. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सारे प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, they played a decisive role. Fine. They played a important role to determining the foreign policy. फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा रोल इनका है. और एक्सटर्नल अफेयर्स में ने भी एक रोल प्ले किया है. जो हमारे इंडिया के जो रिलेशंस थे बाकी के देशों से, वो मेंटेन करने के लिए, वो अच्छे करने के लिए, वो फ्लरिश करने के लिए इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है. तो अभी इंटरनेशनल सिस्टम, वन मोर थिंग बिसाइड्स दिस, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. ये देखो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी. अभी एडवाइज़र्स भी रहते हैं एडवाइस देने के लिए. तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसने भी क्या किया? ये भी क्या कर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? मीन्स द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, दे हैव टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर्स अबाउट फॉरेन पॉलिसी. सो एज पर देयर एडवाइस, एज पर देयर सजेशंस, द प्राइम मिनिस्टर्स दे आर टेकिंग डिसीजंस. फाइन. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम. अभी देखो, ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? जैसे हमने देखा है बाइपोलर वर्ल्ड था, सुपर पावर था. सो एट द टाइम ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सुपर पावर वर्ल्ड, they had influenced on the foreign policy. Okay, see, at the end of the Cold World War, the situation was totally different. Means at the end of Cold World War, the Soviet Union has got separated, new states, new nations has got emerged. That time the relations between India and other countries started changing. अभी ये रिलेशंस चेंज होना शुरू हो गया. अभी ये इंटरनेशनल रिलेशंस हम कह सकते हैं. फाइन. ये भी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट करता है. जैसे कि एग्जांपल देना है तो इंडो यूएस डायलॉग, इंडिया के डायलॉग्स यूएस के साथ, मतलब अमेरिका के साथ इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. देन चाइना पाकिस्तान डायलॉग. मीन्स एवरीवेयर द डायलॉग्स हैज स्टार्टेड चेंजिंग. डायलॉग मीन्स व्हाट? द व्हाट वी कॉल इट, dialogue means the communication. Dialogue means what? Communication. Then the foreign, while maintaining relations, we have to do lots of talks, we have to talk with other countries. So that communication, that dialogues were more important, and they started changing as per the international system or as per the era, as per the decades. Fine. So let's see India's relations with world. अभी हम एक के बाद एक देखेंगे कि वर्ल्ड के साथ रिलेशंस कैसे थे.
बाद में पूरे मतलब एक एक कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे हम ये देखने वाले हैं. Now what we are going to see the relations of India with other world and countries. See, we have maintained a good relations with the other countries also since independence. uh, it doesn't mean that we have to maintain a very good relations with all the countries. It is not possible, it is not necessary also, because it is important to maintain relations with the neighboring countries rather than the other countries, those the countries which are farther, which are far from our country. So it is not necessary, it is not possible to maintain equal, good and close relations with all the countries. Fine, but the India has maintained good relations with all the countries except uh, except the China and Pakistan. See, we tried to maintain good relations, but these two countries, they don't want to maintain good relations, healthy relations with our country. Fine. One more thing, usually the relations with neighboring countries are more important for the foreign policy. Fine, because at the time of natural calamities, at the time of man-made calamities, then first of all the neighboring countries will help us, देन द अदर कंट्रीज़. आपके संबंध कैसे है आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ, तो उस हिसाब से आपको मदद भी मिलती है. तो उनके साथ हमें क्या करना है, घनिष्ठ संबंध रखने हैं. एज वेल एज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो सुपर पावर है अभी तो अमेरिका ही है, तो उनके साथ भी हमें गुड रिलेशंस रखना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर आ गया तो ये जो सुपर पावर है उनका अलायंस भी है, उनका मिलिट्री अलायंस भी है, तो उनके साथ अगर हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं तो हमें आगे जाके उसका फ़ायदा ही होगा. इसलिए हमें सुपर पावर के साथ एक रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, एज वेल एज हमें किसके साथ रखने चाहिए हमारे रिलेशंस अच्छे, फॉरेन कंट्री सॉरी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. अभी ये देखो, मेजर पावर तो हमें पता है, एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है this United Nations. Sorry, just a minute. First is United States, which is America, and second was Soviet Union. Fine, ये दो पोलर सिस्टम्स थे, दो पोलर्स थे जो सुपर पावर्स थे. फाइन, अभी इनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, रशिया के साथ भी है, एज वेल एज हमारे संबंध अच्छे अमेरिका के साथ भी है. तो कोल्ड वर्ल्ड वॉर का हमने देखा है, कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशंस. वी हैव अ वर्ल्ड अफेयर, वी हैव अ फॉरेन अफेयर्स, वेरी गुड फॉरेन अफेयर्स विद दिस टू कंट्रीज. एंड नाउ इंडिया इज़ इमर्जिंग पावर ऑल्सो. ऐसा बोला जाता है कि 21st सेंचुरी में इंडिया एक सुपर पावर के हिसाब से इमर्ज होगा. India will emerge as a superpower in 21st century. India and China. Let's see, let's hope for that. Next is, what are the relations of India with United States? See, relations between India and United States were cordially when India became independent. हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तब कैसे था, US प्रेसिडेंट F.D. Roosevelt had supported the case of India's independence during its negotiations of Atlantic Charter with the British Prime Minister Winston Churchill. अब जब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया. उन्होंने उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के जो प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट थे जब रोजवेल्ट, उन्होंने किसको बोला, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनके साथ उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया और तब उन्होंने क्या किया. हाउएवर इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैड क्वाइट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. मतलब कोल्ड वॉर में इंडिया और अमेरिका इनका ज़्यादा संबंध भी नहीं था और हमने नॉन अलाइनमेंट का एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था. तो उस टाइम अमेरिका का थोड़ा रोष हम पे था. अमेरिका वॉज क्वाइट
they were not agree with the policy of India, that is non-aligned. But still, America supported us. Fine. However, India and the United States had quite different views. हमारे पास different views थे. As a result, relations between the two remained estranged for most of the Cold War period. See, America was in support of, means not directly support on India, but they wanted to support. But the views of India and America was totally different at the time of Cold World War, and because of that, the America, they were not ready to support India at the time of independence also. After that, India's independent position on the crisis in Hungary and Czechoslovakia, ये भी एक क्राइसिस इमर्ज हुए. हंगेरी का है, जेकोस्लोवाकिया का है. एंड इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम. तो अमेरिका ने भी यहाँ पे भी इंटरवेंशन मतलब इंटरफियर किया वियतनाम में. ये भी एक जो रीज़न है वो अमेरिका का और इंडिया का रिलेशंस अच्छा मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं रहा. सब रीजन्स फॉर द अमेरिकन डिस्प्लेजर, मतलब अमेरिका हमसे नाराज़ था ये जेकोस्लोवाकिया, हंगेरी एंड वियतनाम के क्राइसिस की वजह से. बाद में क्या हुआ, द अमेरिकन पोजीशन ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट was a constant irritation for India. Means America was in the support of Pakistan, and that time America was supporting Pakistan in the dispute of Kashmir and India, Kashmir and Pakistan. It was मतलब कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान में एक जो डिस्प्यूट था वो कश्मीर था, और उसमें लगातार अमेरिका ने कश्मीर के बारे में हमें सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया. तो ये इरिटेशन था इंडिया को. बाद में क्या हुआ, इन 1970s अमेरिकाज क्लोज रिलेशंस विथ पाकिस्तान एंड चाइना क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. अमेरिका का सपोर्ट किसको था, पाकिस्तान को था. चाइना का भी सपोर्ट किसको था, पाकिस्तान को था. तो ये इरिटेड इश्यूज थे जो बार बार इमर्ज हो रहे थे, जो इंडिया के खिलाफ था. इट वाज अगेंस्ट इंडिया. सो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से अमेरिका और इंडिया में अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाए. आफ्टर दैट कोल्ड वॉर एंड हुआ, देन सोवियत यूनियन सेपरेट हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ. तो क्या हुआ, द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट इम्प्रूव इमीडिएटली. सी हमने क्या देखा है, नॉन अलाइनमेंट हमने अडॉप्ट किया था. नॉन अलाइनमेंट मीन्स व्हाट, ना कि अमेरिका के साथ जाना है ना कि सोवियत यूनियन के साथ जाना है. अब क्या हुआ, सुपर पावर सिर्फ अमेरिका रह गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुए, उसमें बहुत सारे स्टेट और नेशंस के इमर्जेंस हुआ. तो रशिया उसमें एक नेशन कह के इमर्ज हुआ. तो अभी अमेरिका को रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ कुछ उनका ऐसा रोष नहीं था क्योंकि वो पूरा डिसइंटीग्रेट हुआ. लेकिन क्या हुआ, अभी भी अमेरिका को हमने मतलब इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था. फाइन. सो ये थोड़ा ये सिचुएशन था कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, अमेरिका सुपर पावर बन गई, और थोड़ा थोड़ा हमारा जो रिलेशंस है अमेरिका के साथ वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ. इमीडिएटली इट डजंट इम्प्रूव, but gradually it start improving. But one more issue has got started. It was United States brought pressure on the new state of Russia to stop the supply of space technology to India. अभी एक नया इशू इमर्ज हुआ कि हमारा देश तरक्की करने लगा, हमारे देश का प्रोग्रेस डेवलपमेंट होने लगा स्पेस में भी, उसमें हमें रशिया मदद करने लगा. अभी सुपर पावर अमेरिका है, उनको ऐसा लगने लगा कि रशिया भी सुपर पावर ना बने, इंडिया सुपर पावर ना हुए. तो इसके लिए उन्होंने रशिया पे दबाव डालना चालू किया कि आपने स्पेस के कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने किसको नहीं देना है, इंडिया को नहीं देना है. तो ये एक दबाव उन्होंने चालू किया, उन्होंने एक प्रेशर लाना चालू किया.
देन फॉलोइंग इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर, उसी समय इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट भी किया 1998 में। वो भी एक इशू बना अमेरिका के लिए। उनको ऐसे लग रहा था कि कोई भी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए, सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है, उन्होंने ही न्यूक्लियर टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम इंडिया ने किया। इसके लिए आप वो मूवी देखो पोखरन, वो मूवी देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट इशू था इंडिया, नेचर ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशंस बिगैन टू चेंज टूवर्ड्स द 20th सेंचुरी। अब क्या हुआ, ये सारे इशू इमर्ज होने लगे, फिर भी हमारे जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं हुए। लेकिन एट द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी नाउ द सिचुएशन हैज़ गॉट चेंज। अभी रिलेशंस में बदलाव आने लगे। रिलेशंस में टेररिज्म की वजह से क्या हुआ, हमारे जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग होने लगे। इमिडिएटली ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, लेकिन ग्रेजुअली इट स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। अब क्या हुआ, उसमें इंडिया ने सपोर्ट किसको किया, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बुश, उन्होंने ये टेररिज्म के मतलब अमेरिका में भी टेररिस्ट अटैक हुए थे, इंडिया में भी टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। बाद में कश्मीर का एक प्रश्न, वो तो हमारा जीवंत एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है कश्मीर का, कश्मीर इशू, उसमें भी अभी फेवरेबल कंडीशन आने लगी, अमेरिका हमें सपोर्ट करने लगा। सो अभी ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द पार्लियामेंट ऑफ टू इंडिया इन 2001 बाय टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन पाकिस्तान, अब अमेरिका को ये समझ आने लगा कि ये जो टेररिस्ट अटैक उसका बेस कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ से ये टेररिस्ट आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। जो सारे टेररिस्ट के सूत्र है वो किसके हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में। तो अमेरिका को अभी ऐसे लगने लगा कि टेररिज्म जो फैल रहा है वो कौन फैला रहा है, पाकिस्तान फैला रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करना चालू किया। फेवरेबल कंडीशन किसको मिलने लगी, अभी इंडिया को मिलने लगी। देन पाकिस्तान को जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें उन्होंने मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना उन्होंने स्टार्ट किया। ये देखिए हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर लर्निंग, हाउ द रिलेशंस हैज़ गॉट चेंज, हाउ इट स्टार्टेड चेंजिंग। सो उसके बाद क्या हुआ, द रियल टर्निंग पॉइंट इन बायलैटरल रिलेशंस was the signing of the India-US Civilian Nuclear Corporation Act or Agreement in the 2008. See, after 2008, the relations has got changed. The US regards India as a major partner in the Indo-Pacific. See, Pacific जो ओशन है as well as जो इंडियन ओशन है उसमें भी इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अब ये रिलेशंस में चेंजेस आना शुरू हो गए। फॉर इंडिया द यूएस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ पार्टनर इन ट्रेड। अभी देखो ट्रेड कम्युनिकेशन इसमें इंडिया ने पार्टनरशिप की अमेरिका के साथ। वन मोर थिंग, वी हैव इंटेलिजेंट पीपल, वी हैव skilled people in India, we have trained educated people and they are getting jobs in America. Means what, the trade communication then intelligent trade has got started in after 2008. The defense partnership between the two countries is constantly growing, अभी ये भी चालू हो गया। then the two are also partners in multilateral fora like the India US Japan और India US Japan Australia। ये जो एक फोरा था उसमें भी अभी क्या हुआ, इंडिया और अमेरिका है उन्होंने पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया, और इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया के और अमेरिका के जो संबंध थे, जो रिलेशंस थे वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया सोवियत यूनियन, देन इंडिया चाइना,
फाइन। ये दो देशों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे वो देखेंगे। देन इंडिया एज इमर्जिंग पावर, दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर। देन नेबरहुड, कौन कौन से कंट्रीज़ है हमारे नेबर में, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़, उसको हम बोलते हैं नेबरहुड। देन अफ्रीका के साथ कैसे संबंध है, इंडियन ओशन रीजन, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप you have understood all the points which I have covered. I have covered till India's relationship with America. If you have any doubt, if you have any query, you can ask me in the comment box. Write it down in comment box. I will try to answer your questions. Okay students, then bye bye. Be safe. Take care.